السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ون نیوز اور میں ہوں غلام دستگیر پروگرام ٹاک ٹائم کے ساتھ۔ آج میں جن شخصیات کی ملاقات آپ سے کراؤں گا ان کا تعلق جو ہے پاکستان یوتھ پارلیمنٹ سے ہے، جن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد حسن صاحب جو کہ ڈائریکٹر آف آپریشن ہیں، اور دوسرے ہمارے ساتھ ہیں فواد حسن صاحب جو کہ پروجیکٹ اور کوآرڈینیٹر ہیں اہل زندگی کا۔ تو آئیے ان سے آپ سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان یوتھ پارلیمنٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے، اس کے آگے پروجیکٹ ہیں، جن میں سے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اہل زندگی کا ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے متعلق۔ جی سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ آرگنائزیشن کیسے بنی اور اس کے لیے کیا تگودود کرنی پڑی آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم۔ بیسیکلی پاکستان یوتھ پارلیمنٹ ایک یوتھ آرگنائزیشن ہے وتھ اے موٹو آف ڈریم پیشن اینڈ ڈیسٹینی۔ ہمارا ویژن بیسیکلی یہ تھا کہ ہم ایک یوتھ کو ایک سنگل ایسے پلیٹ فارم پہ یونائٹ کریں کہ جس کے اندر کیریئر ڈیولپمنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ یوتھ امپاورمنٹ ایسے ہو کہ جو ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک ڈیوائڈ ہونے کا عناصر پایا جاتا ہے، ہم اس کو ختم کر سکیں۔ ایک ڈفرینٹ ویژن ہوتا ہے، ہر سیکٹس بن جاتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ کولیشن آف یوتھ فار بیٹر پاکستان۔ تو نہیں جی، کیا صرف یوتھ کے لیے ہی آپ نے اس کو اسٹیبل کیا ہے کہ ان کے باقی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بیسیکلی یہ ایک ہول یوتھ امپاورمنٹ کی آرگنائزیشن ہے جس کے اندر ہم فوکس کرتے ہیں 17 ایئرس ٹو 35 ایئرس کے ساتھ۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جیسے 17 ایئرس کے اندر یوتھ ہوڈ اسٹارٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارے پاس اسٹوڈنٹس سے لے کر کیٹیگری پروفیشنلز تک جاتی ہے، جس کے اندر ہمارے پاس ڈاکٹرز، انجینئرز، انوائرمنٹلسٹ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اینڈ میڈیا پرسنز اینڈ یہ سو آن، اس طرح ویری۔ اور یہ کب اسٹیبل ہوئی؟ بیسیکلی اس کی ایک ہول ہسٹری ہے جس کے اندر یوتھ ڈیولپمنٹ کا کام پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کا 2016 سے آنورڈ سٹارٹ ہے، جس کے اندر ہم نے 2019 کے اندر اس کو دوبارہ سے ڈیزائن کر کے ری لانچ کیا تھا پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے تھرو۔ اب اس کے اندر ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں اینڈ کونسلز ہیں جو اپنی اپنی ڈومین کے اندر یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستان یوتھ پارلیمنٹ اسکلز ڈیولپمنٹ کونسل ہے، یوتھ پارلیمنٹ ہیلتھ فورم ہے، یوتھ پارلیمنٹ میڈیا سیل، انٹرپرینورشپ کلب۔ اس کے جو ورک امبیشنز ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی جو پلانز ہیں وہ مستقبل اس کے کیا پلاننگ اس کی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ جیسے میں نے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے ڈفرینٹ فورمز ہیں، پروفیشنل فورمز ہیں، کونسلز ہیں۔ ہر فورم اور ہر کونسلز اپنی اپنی اسپیسیفک ڈومین کے اندر ایک فوکسڈ ہے۔ بزنس سیل جو ہے وہ ہم بزنس اسکلز اینڈ مینجمنٹ کے اوپر ممبرس کو ٹرین کرتے ہیں۔ اسکلز ڈیولپمنٹ ایک بہت اس وقت گیپ پایا جاتا ہے ہماری یوتھ کے اندر کہ اسکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر ایک فقدان ہے جس کے اوپر ابھی کام ہونا شروع ہوا ہے۔ تو ہمارے اسکلز ڈیولپمنٹ کونسل ہے، ہیلتھ کونسلز کے اندر ڈاکٹرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، سی اے کلب کے اندر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاکستان کے اندر انوائرمنٹ کا بہت بڑا کلائمیٹ چینج کا عالمی ہے، تو ہمارا ایک باقاعدہ گرین انوائرمنٹ کلب ہے جس کے اندر انوائرمنٹلسٹ ہیں اور پروجیکٹس اینڈ کیمپینز۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے گرین انوائرمنٹ کی کیمپینز لانچ کی۔ تو اس کو کون کون سے لوگ جوائن کر سکتے ہیں؟ طریقہ کیا ہے؟ لوگوں کو ذرا یوتھ کو بتائیے گا۔ اس موسٹ سمپل پاکستان یوتھ پارلیمنٹ.com کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے ممبرشپ آپ فارم فل کر سکتے ہیں اینڈ دیر از نتھنگ کرائٹیریا۔ آپ 17 to 35 ایج کے اندر ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں ود یور ایمبیشنز اینڈ آپ کا جس طرح انٹرسٹ ہے آپ اس کونسل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آن لائن اس کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ سینٹرلائز سسٹم ہے ہمارا پاکستان۔ تو ان کی کوئی فیسز یا کوئی اور اس کے کام اس کی کیا ہے بتائیے؟ بیسیکلی اس کی فی ہماری ایسے کوئی آفیشیل نہیں ہوتی، اس کی فی ہوتی ہے 500 to 1000 جو ممبرشپ چارجز ہوتے ہیں، جس کے اندر ہم ممبرس کو ہی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جس کے اندر ہماری اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوتی ہے ایک پراپر۔ جیسے 2019 کے اندر اینول یوتھ سمٹ ہوا تھا جس کے اندر ممبرس کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی باقاعدہ ایئر فورس کلب کے اندر کی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ان کے ممبرس کے تھوڑے پری ریکوزٹس ہوتے ہیں جس کے اندر ان کا ممبرشپ کارڈ ہوتا ہے، ممبرشپ ڈائری ہوتی ہے، اس طرح چارجز ہوتے ہیں اس کے۔ بیسیکلی اس کی کوئی فی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کا پروجیکٹ ہے اہل زندگی کا، اس کے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر یہ بتائیے گا آپ کے اہل زندگی کی جو کمپیننگ چل رہی ہے اس کے بعد لوگوں کو ذرا ہماری یوتھ کو بتائیے۔ بیسکلی یہ جو کمپین شروع ہوئی تھی یہ اس پرسپیکٹو میں ہوئی تھی کہ لاک ڈاؤن جیسے ہی اوپن ہوا ہے کرونا کے کیسز سرچ ہو گئے تھے، اور اس میں جو بیسک ہمیں ایک پوائنٹ پتہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں ایس او پیز یہ فالو نہیں کر رہے، لوگوں میں اویئرنیس کی بہت کمی ہے۔ تو یہ ایک کیمپین ہمارا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، ہمارے پریزیڈنٹ ابو بکر صاحب،
उन्होंने इसको कैंपेन को डिज़ाइन किया, जिसके तहत ये तय किया गया कि हम में से हर पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट का हर मेंबर अपने तौर पे हलफ लेगा कि वो SOPs के पे अमल दरामद करेगा, और वो आगे 10 और लोगों से यही हलफ लेगा कि वो भी SOPs पे अमल करेंगे, और वो 10 लोग फिर आगे 10 लोगों से लेंगे, और इस तरह ये वन टू मैनी मॉडल को फॉलो करते हुए कैंपेन एक जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस फैला देगी। तो ये क्या जरूरत पड़ी इसको करने के लिए? ये टाइगर फोर्स जो है ऑलरेडी इस पे काम कर रही थी, उसके साथ मिलके क्यों नहीं किया काम? हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत तो ये थी कि लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी थी, और वो तो 10 लोगों को हर बंदे ने ऐड करना था कि 10 लोगों को आपने अवेयरनेस देनी थी। वो वैसे ही एक बंदे 10 ऐसे काफ़ी हो जाएंगे। आपका आइडिया बहुत बेहतरीन है, लेकिन आप अगर टाइगर फोर्स में अपने यूथ को रजिस्टर करके वहाँ पे करते तो? जी बिल्कुल, इसमें ये था कि टाइगर फोर्स एक बिल्कुल न्यू डेवलपमेंट थी, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जो इस ऐसे कैंपेन के जो मोमेंटम होता है उसको फेस कर सके। और टाइगर फोर्स को जब सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइगर फोर्स इट हैज़ बीन पॉलिटिसाइज्ड, लोगों ने उसको एक सियासी तंजीम के तौर पे देखा, ना कि एक समाजी सोशल वर्क के तौर पे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से और इस इंटरव्यू के थ्रू, इस मीडियम से हम उनको एक ओपन इनविटेशन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट सिंस 2016 काम कर रही है, और हमारे पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। वो हमारे सामने एक ओपन इनविटेशन दे रहे हैं कि हमारे साथ आए, हम मिल के काम करें। आपने लोगों की अच्छी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की और 10 लोगों को भी ऐड करने का जो अपने मेंबर्स को कहा, तो रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस इसका सर, क्या आप अपनी काविश में कामयाब रहे अभी तक? जी फ्रैंकली स्पीकिंग हमें बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है। सिंस दैट डे तकरीबन हमें 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ता हुआ होगा, हमारे पास 2500 प्लस वीडियोस आ चुकी हैं जो लोग ओथ ले रहे हैं। क्योंकि सर ये बात, इसमें बात समझने की ये है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लोग अपने आप को बचाने के लिए और अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर मेरे सामने मेरा कोई किसी प्यारे को या आपके सामने आपके किसी अजीज को कोई तकलीफ पहुंच रही हो, हम ये बर्दाश्त करेंगे क्यों ये पहुंचे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। इसी तरह लोगों को बस ये पॉइंट समझाने की जरूरत है कि SOPs आपको नहीं सिर्फ अफेक्ट करेंगे, वो बाकी लोगों को भी करेंगे जो आपके प्यारे हैं, जो आपके अजीज हैं। बेसिकली इसका और ये था कि अहद तो एक सोर्स है कि हमने 10 लोगों से अहद लेना है, मकसद ये नहीं है। मकसद ये था कि हमने अवेयरनेस पहुंचाने लोगों तक। जी, तो ये तो हो गया ना यूथ का, जिनके पास वो क्या कहते हैं स्मार्टफोन्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए आपने ये कैंपेनिंग शुरू की, उन्होंने आपने बताया कि 30,000 लोगों को। लेकिन जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, जो जिनके पास टच मोबाइल नहीं है या कोई और रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए क्या हो सकता है इस कैंपेन का? पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट में जैसे ही कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी थी, पॉलिसी अनाउंस कर दी थी। कंट्री वाइड मेंबर्स के नेटवर्क के थ्रू हमने कंट्री वाइड कैंपेन्स की हैं, अवेयरनेस रेज की है। फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू स्कूल्स तो बंद हो चुके थे, लेकिन हमने स्टूडेंट्स तक अप्रोच करने की कोशिश की है। इसके साथ ही हमने फ्रंट लाइनर्स को अप्रोच किया, जिससे हमने पुलिस डिपार्टमेंट था, हेल्थ वर्कर्स थे, और इसी के साथ हमने वो वाले तबके को भी इसमें टच किया है जो कोविड-19 की वजह से इफेक्ट हुआ है और उनके पास कोई प्रॉपर सोर्स नहीं रह गया था जो कि उनके पास अवेयरनेस जा सके, जो मतलब लॉकडाउन की वजह से बहुत पीछे चले गए थे। हमने उनको भी टच करके, जिसके अंदर हमारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, हम उनको मतलब इन लिंक के रहते उनके पास अवेयरनेस उनके तक पहुंचाई है। तो ये नहीं है कि ये कैंपेन बाद में लॉन्च हुई है, एक डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ हमने वर्किंग मार्च से ही स्टार्ट कर। जैसा कि हर काम को स्टार्टिंग में कुछ मुश्किलात पेश आती हैं, तो इस कैंपेन को चलाने के जैसे मुल्क की इस वक्त हमारी कंट्री की जो है सूरत भी ठीक नहीं है, मशरक़ भी ठीक नहीं है, कोरोना भी है, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको दरपेश हैं, वो भी ज़रा डिस्कस कीजिए। लेकिन आपको पता होगा हमारी सोसाइटी के अंदर एक बेसिक एलिमेंट है कि जो अवेयरनेस जो है ना उसके ऊपर अट्रैक्ट करना, क्योंकि जब एक मतलब डायरेक्ट इन लिंक होते हैं ना, तो हमें उनको समझाना होता है कि भाई ये SOPs हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। इस वक्त आप देखेंगे हॉस्पिटल्स के डोर के ऊपर उनको ज़बरदस्ती बताना पड़ रहा है भाई मास्क लगाएं। इस वक्त भी अवाम मास्क नहीं लगा रही, नहीं वो अवेयरनेस नहीं अभी तक है, जो लोगों को अभी तक आ जानी चाहिए। जी, यही मुश्किलात हैं कि हमारा मुश्किलात ये है कि हमें अवेयरनेस को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, जो अभी हम काफ़ी लैग कर रहे हैं।
जो रिसेंटली आपको पता होगा कि जुलाई स्टार्ट के अंदर एक पीक पे चला गया था कोरोना, जो अब नज़र आ रहा है कि अवेयरनेस थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो उसको टाइम लगेगा कंप्लीट खत्म होते हुए। अच्छा फवाद साहब, बीइंग यूथ, आप ये सेटिस्फाई हैं मौजूदा सूरत हाल से गवर्नमेंट की जो इसमें चल रहा है इस वक्त? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग इस गवर्नमेंट में यूथ के लिए कुछ स्पेशली वादों के अलावा कुछ किया नहीं गया। यूथ काउंसिल बनाई गई, उसमें सारे जो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया जिनका यूथ से कोई लेना देना नहीं था, जिनको यूथ की प्रॉब्लम की अवेयरनेस नहीं थी। अभी जिसको बुरी तरह जो एक्सपोज हुई, जो पाकिस्तान की पूरी यूथ ही स्टूडेंट्स थे, यानी कि पाकिस्तान के सारे स्टूडेंट्स जो बेस करती है यूथ पे करती है। और जब यूनिवर्सिटीज़ का इशू आया, फी इशू आया, एजुकेशनल क्राइसिस आया पाकिस्तान में, उसमें जो यूथ काउंसिल थी वो पूरी तरह एक्सपोज हो गई, जो इस गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी, कि स्टूडेंट्स को सड़कों पे या प्रेस क्लब में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अगर उस पॉइंट पे सही मानों में यूथ काउंसिल की जो लीडरशिप थी वो यूथ के हाथों में होती तो ये कभी ना होता। प्रॉपर चैनल से बात होती, बिल्कुल अनारकी नहीं फैलती, इतना फियास्को क्रिएट होता ही ना। तो इसको एज अ यूथ, जो यूथ अपने तौर पे तो रोल अदा कर सकती है, उससे तो सेटिस्फेक्शन हो सकती है 70 to 80%। लेकिन तो यूथ का क्या रोल हो सकता है मौजूदा सूरत हाल को जरा बेहतर करने के लिए, ये भी गाइड करें जरा अपने यूथ को। बिल्कुल यूथ का ये रोल हो सकता है कि एक तो कोरोना से रिलेटेड अपनी अवेयरनेस को फैलाएं अपने फॉलोइंग सर्कल्स में। दूसरा यूथ सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, यानी कि अपना यूथ गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे। आपको पता है आजकल जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है वो हो रहा है सेल्फ बिजनेस की तरफ, कि हर कोई जॉब्स कुछ हो नहीं कर रहा और अपना बिजनेस डेवलप कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये यूथ के पास एक बहुत अच्छी चीज़ होती है क्रिएटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइम तक होती है, उसके बाद जब माइंड जैसे जैसे ओल्ड हो जाता है ना तब ये चली जाती है। अच्छा अहमद सर, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि फ्यूचर प्लानिंग पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के क्या है, जरा डिस्कस कीजिए। जी, फ्यूचर प्लानिंग में आपकी ये जो बात इस वक्त अभी बहस चल रही थी, इसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो ये देखें बात आती है एहसास ज़िम्मेदारी की, कि यूथ के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी हो तो ना ही बात गवर्नमेंट के ऊपर जाएगी, ना ही हमारे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आएगी, लेकिन अब बात होगी इन दोनों सेक्टर्स को इंटरलिंक करने की। तो जब ये दोनों सेक्टर इंटरलिंक हो जाएंगे, कदम ब कदम साथ मिलकर चलेंगे, तो ये जो एक गैप फिल हुआ है कि वो काम करेगा या वो अपॉर्चुनिटीज़ देगा या प्राइवेट सेक्टर खुद अपॉर्चुनिटीज़ देगा, तो ये गैप ख़त्म हो जाएगा। तो यही है कि हमने दोनों हर चीज़ को एक साथ लेकर चलना है। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट का भी यही विजन है कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको शुरू करना है कि इन फ्यूचर विजन 225 हम सेल्फ रियलाइज हों। हमारी यूथ जो है दूसरों की तरफ ना देखे, हमारे मतलब इस वक्त देखें ना, ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम है, ठीक है। दुनिया के अंदर सब कुछ लॉकडाउन है इस वक्त, लेकिन अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अभी भी बूम कर रही है। तो हमें इसी चीज़ को फोकस करना है कि यूथ का एहसास ज़िम्मेदारी हो कि लॉकडाउन है, सब कुछ क्लोज है, लेकिन अभी भी वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हंट कर सकते हैं, अपना जो टाइम है उसको बेटर प्रोडक्टिव वे के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। क्यों ये सब कुछ तभी होगा जब वो एहसास ज़िम्मेदारी होगा और वो अपॉर्चुनिटीज़ को कीमती जानते हुए उसे मुस्तफ़ीद होंगे। जी फवाद साहब, आखिर में यूथ के लिए कोई अहम प्रोग्राम अपने प्लेटफॉर्म से या अपने इंफरादी तौर पर? यूथ के लिए यही पैगाम है कि सेल्फ रिलाइड होने से पहले सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आए, अपने पोटेंशियल को खुद जाने। अच्छा आप दोनों मिलके वो जो आपकी अहद कैंपेन चल रही है, अहद ज़िंदगी का, उसका ज़रा एक वो हो जाए ताकि लोगों तक आपका एक दफ़ा फिर अवेयरनेस हो जाए। मैं बहैसियत पाकिस्तानी हर मुश्किल घड़ी में अपने मुल्क की हिफाजत करने का और अपने मुल्क के लोगों के लिए हर मुश्किल में मावन का किरदार अदा करने का अहद करता हूँ। मैं अहद करता हूँ कि मैं कोरोना वायरस की तमाम मुहाफ़िज़ती तदाबीर अपनाऊँगा और कम अज़ कम 10 अफराद को इसके मतलब आगाही फराहम करूँगा, और ये मैं उनसे अहद लूँगा कि यह है अहद ज़िंदगी का, यह है अहद पाकिस्तान का। इस हदफ की अदायगी में हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।